कितनों तक के रोकेगा ये नरेंद्र मोदी? कितनों तक को जेल में डालेगा? पर्यावरण की बात है, सर कट जाएंगे लेकिन रुकेगा नहीं। ये दीवाने कहाँ चले? जेल चले, जेल चले। ये दीवाने कहाँ चले? into the vans चलो 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 इस तरीके से और ले आओ, उठा के ले आओ। the police are not letting us talk to the people who are detained right now. We can see in our visuals and they are trying to say that we were protesting peacefully. Although protests were getting a bit violent, we have shown you through the visuals and they are saying it is unjust. अरे कितनों तक के रोकेगा ये नरेंद्र मोदी? कितनों तक को जेल में डालेगा? पर्यावरण की बात है, सर कट जाएंगे लेकिन रुकेगा नहीं। डिटेन इसलिए किया, विरोध दर्ज है, विरोध कर रहे हैं, उसके लिए डिटेन किया गया अरावली को बचाने के लिए। परमिशन ले रखा है, कितने लोगों का परमिशन लिया था और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का बोला था, उसके बाद भी ये जबरन हम पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। पुलिस को आज बिल्कुल लिया था, 2 दिन पहले सभी ले आएगा, पूरी मेवाड़ की जनता आएगी। मैं फतेह सिंह राठौड़, शहर कांग्रेस कमेटी उदयपुर। So we can see over here that protesters are detained right now. People are agitated. The reason behind it is that they are demanding that the decision which is being taken by Supreme Court should be reviewed again at any cost. Aravalli Hill Ranges should be safeguarded. Now we are going to talk with the protesters over here and we can see in the live visuals on our screens that they are being detained. They are saying that permission of we can see over here elderly people are also पुलिस को आगे करता है। here we can see in an unjust action that is being taken by Rajasthan police. Elderly people are also detained. I can tell you that hundreds of people have thronged to protest against the issue that is being raised by entire nation, and we can see power is being used on the protesters who are demanding that decision taken by Supreme Court should be reviewed. Again we are going to cut across to the sir, आप हमें बताइए क्या मांग है लोगों की? यही मांग है कि इस अरावली पर्वतमाला जो है इसको बख्श दिया जाए। जिस तरह से खनन माफिया को इनको दिया जाने की जो मंशा है इनकी सरकार की, उस सरकार की इस मंशा के खिलाफ हम लोग हैं। इस अरावली पर्वतमाला को बचाया जाना की बहुत जरूरत है। मोदी जी के खिलाफ भी नारे लग रहे हैं। तो ये पर्यावरण मंत्रालय किसका है? केंद्र सरकार के अधीन में ही तो आता है। जब पर्यावरण मंत्री एक सिफारिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि अरावली के 100 मीटर के दायरे में लाया जाए, मंत्री है वो ये कह रहे हैं कि जो पहाड़ है उसका जो ढलान है उससे लंबाई नापी जाएगी। ये इलीगल, ये सब उनकी बातें हैं। बातों से काम नहीं चलता है, काम करने से काम चलता है। इस तरह की बातें करके वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। देश की जड़ों को खत्म करना चाहती है। ये देश महात्मा गांधी की जड़ है। भैया आप गुंडे हो क्या या अरावली के लिए हो आप? या जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये भगत सिंह की जड़ें है, ये महात्मा गांधी की जड़ें है। खत्म होने वाली। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। the power that is being unleashed on the people of Rajasthan, citizens of India, for demanding to safeguard the ecological shield of Rajasthan, that is Aravalli Hill Ranges. We all know that it is billions of years old. It is one of the oldest hill ranges of India, and we know that it dissects the Thar desert and other parts of the country, because we know that desert always march past, it marches ahead, but Aravalli is the shield, is a barrier to this entire phenomenon. And now Supreme Court has given a decision saying that hill ranges, hills which are above 100 meters of height, will be counted as the Aravalli Hills. And against that, for them it is not just an ecological site which has importance ecologically, environmentally, but it is valor for them.
let us again try and talk to people over here who are being detained right now, and let us try and talk to people what are their demands and why are they protesting. So they are agitated and they are protesting. सर आप हमें ये बताइए, मैं देख पा रही हूँ देश की जनता, देश का युवा सड़क पे उतर है. Women are also being detained, transgender. आप देख रहे हो किस तरीके से मोदी की तानाशाही बढ़ गई है. ये महिला के ऊपर जो अत्याचार उसको नहीं छोड़ना. महिलाओं के ऊपर जिस तरह से बाहर खींचो ना, बाहर कैसे खींच रहे हो? बाल मत लगाओ, वो नहीं हो गया है. जिस तरह से कार्यकर्ताओं के एक अरावली बचाओ अभियान को लेकर बस अरावली के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे और मर के भी दिखाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे. करके यहाँ से खदेड़ के ले जाने. मैं पूरी आदिवासी समाज और संत समाज से आह्वान करती हूँ कि मोदी सरकार को और 25 सरकार को आने वाले समय में यहाँ से धकेल के भगा देंगे. वजनलाल तेरी तानाशाही. Protesters are also alleging that it is a dictatorship rule of central government and the state government. In both state and center, it's a BJP government cutting across to protesters again. आप बताइए, देश का युवा सड़क पे उतर आया है, क्या मांग है सरकार से? यही मांग है कि अरावली को बचाना है. अगर अरावली नहीं रहेगी तो पानी कहाँ से आएगा? अरावली नहीं रहेगी तो किसान कैसे जिंदा रहेगा? रेगिस्तान बनने से उसको कौन रोकेगा? ये खनन माफिया को सीमेंट फैक्ट्रियों में दान देने के लिए खनन कर रहे हैं. ये कानून अपने हाथ को खुला कर रही है, खनन माफिया को फुल आजादी दे रही है. आप हमें ये बताइए, जो आम जनता को इस तरीके से डिटेन किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, उसके बारे में बताइए. जी देखिए, सरकार ने पूंजीपतियों के लिए एक रेड कारपेट बिछा दिया है. उनका काम यह है कि कैसे इन अमीरों को और अमीर बनाए और आम जनता को इस प्रकार से कुचले, जो अपने हक के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए लड़ रही है. ये निश्चित तौर पे सरकार की दमन नीति अपनाता है. और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री राजस्थान से आते हैं. अलवर से भूपेंद्र यादव जी मिनिस्टर बने हैं जीत कर. क्या अलवर में फिर वो मुंह दिखा पाएंगे? जिस प्रकार से अरावली को काटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो हम कभी सफल नहीं होने देंगे. और इस लड़ाई में युवा, आमजन, महिलाएं सभी साथ है और निश्चित तौर पे सरकार को कोर्ट को अपना फैसला बदलना होगा. And it's a fact that even women are being detained. We can see in live visuals, forcefully, people, elderly people, protesters, youngsters, women, all are being detained from the protesting site. And protesters are claiming that protest permission was being taken. 500 protesters were allowed to be on site, but still they are being detained. सर आप हमें बताइए, जिस तरीके से लोगों को डिटेन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके? ये बिल्कुल सरासर तानाशाही है और इस तानाशाही से हम डरने वाले नहीं है. मेवाड़ के वासी हैं, स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं और नहीं करेंगे, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए. लेकिन सर, समाज से लोग आए हुए हैं, इस तरह डिटेन कर रहे हैं, आम जनता के आंख में धूल झोंक रहे हैं. इस धूल को हम झोंकने नहीं देंगे. Also have people from transgender community. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके कम्युनिटी के लोग भी बड़ी संख्या में जुड़ते हुए मैं देख पा रही हूँ, कुछ डिटेन भी हुए हैं, कैसे देखते हैं और क्या मांग है सरकार से? सरकार से ये मांग है कि अपने जो भी फैसला है राज्य खुशी करे, हम सब एक है, किसी पार्टी पक्ष से मैं भी नहीं बोल रही हूँ, पर शांति से ये निपटा जाए. और पब्लिक क्या है, जो लोग आ रहे वो जोर जोर से बोल रहे हैं, अपने क्या सोशल पे फेमस होने के लिए आ रहे, और एक को तो सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये मांग है कि अपने अरावली को नष्ट नहीं किया जाए. प्रकृति के साथ आज खिलवाड़ कर रहे हो तो फिर आपकी जो पिछली पीढ़ी क्या कहेगी? जो राजपूतों ने इतना बलिदान दिया, राजस्थान का नाम ही राजपूतों की वजह से पड़ा हुआ है. Again and again we can see for them it has a historical importance as well. Again showing you the visuals of people, protesters being detained and force is being applied over here. Protesters are constantly saying that permission for 500 protesters was taken on this site. ये दीवाने कहाँ चले? जेल चले, जेल चले. ये दीवाने कहाँ चले? पुलिस हमारी आवाज को
और जो मोदी सरकार है वो हमारी आवाज को दबाना चाहती है। और अब हम लास्ट कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार सुन ले, सुप्रीम कोर्ट अपने जो आदेश है उसको वापस ले ले, अन्यथा इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन इस पूरे राजस्थान के अंदर होगा और मेवाड़ के अंदर होगा। सर आप हमें ये बताइए कि इन्हें डिटेन क्यों किया जा रहा है? डिटेन क्यों किया जा रहा है सर? चले आराम से